Hi friends, we have started class 11th IT lesson basics of information technology. In the previous lecture, we have seen types of network, that is local area network, metropolitan network, wide area network, and then we have seen network configuration in that peer-to-peer architecture and client server architecture. After that, we have seen internet, history of internet, and some protocols. Now we are going to start with enabled services. Now, in enabled services, meaning of IT and meaning of IT enabled services. So, IT enabled services, ITES, also called web enabled services or remote services or teleworking, covers the entire amount of operations which exploit information technology for improving efficiency of an organization. The most important aspect is the value addition of IT enabled services. IT enabled services means the services which comes under IT, technological services. So it is just the basic information that which services are provided and what is the meaning of enabled services. So the value addition could be in the form of customer relationship management, improved database, improved look and feel, etc. The root outcome of an IT enabled service is in two forms: a direct improved service and indirect benefits. Whereas direct benefits can be realized immediately, indirect benefits can occur over a period of time and can be harnessed if very effectively if planned well upfront. So IT enabled services are two types. First is direct and second is indirect benefits. Direct benefits which we can see directly, and indirect benefits are after some time we can see slowly. So next we are going to see popular IT enabled services center. तो ऐसे कौन से आई टी एनेबल्ड सर्विसेज है जो पॉपुलर है. तो फर्स्ट इज पॉपुलर आई टी एनेबल्ड सर्विसेज सेंटर्स आर. फर्स्ट इज कॉल सेंटर. We mainly know the call center and electronic publishing, medical transcription, data centers, GIS mapping, geographic information system, ERP, enterprise resource planning, and management and archive. These are popularly known services. We know call center, somebody knows electronic publishing, medical transcription, data centers, and and these are some, and there are many more services which are provided by IT services. Now we see careers in IT. There are lots of careers in IT if somebody wants to do their career in IT. So we just see introduction. Various career opportunities are available for IT professions. uh, these vary from operator to specialized skilled programmer. Some of the careers opportunities are follow. तो आईटी में बहुत सारे करियर्स हैं और some of them have given here. So first is वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर. तो हमें ये पता है वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपिंग करने का आईटी में, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा करियर है. इसमें भी वेब डेवलपिंग और वेबसाइट को डिज़ाइन करना, इसके लिए भी बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं. सो वन कैन डेवलप इंटरैक्टिव वेबसाइट यूजिंग नॉलेज ऑफ HTML, PHP एंड वेरियस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इस सर्विस में जाने के लिए आईटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. और जैसे कि PHP है, HTML है, उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए. तो इसमें आईटी में जिसको भी अच्छा नॉलेज है, जिससे भी इसके रिलेटेड अच्छी नॉलेज ही है, वो वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बन सकता है. सेकेंड इज सॉफ्टवेयर डेवलपर. सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, जैसे कि मोबाइल का, पीसी का सॉफ्टवेयर होता है. इट इज़ पॉसिबल टू हैव करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर विद द स्क्रिप्टिंग स्किल. इसके लिए भी अच्छी नॉलेज होनी पड़ती है. तो वन कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. डाटाबेस मैनेजमेंट, बहुत सारी कंपनीज में डाटाबेस मैनेजर होता है जो उनका डाटा हैंडल करता है. आईटी कंपनीज में मोस्टली. आफ्टर गेटिंग नॉलेज अबाउट डाटाबेस मैनेजमेंट, वन कैन वर्क एज अ डाटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ SQL स्किल्स. तो डाटाबेस मैनेजर बनने के लिए
किसी भी जो भी इंसान बनना चाहता है उसके पास SQL स्किल्स होनी चाहिए और उसको डाटाबेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो ही कैन बिकम अ डाटाबेस मैनेजर। सो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी analytics. Information security analysts are responsible for ensuring that network are watertight, and they educate staff to avoid unintended discolors and keep up to speed with the potential external threats. So इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या होता है, जैसे ऐप्स में जैसे सिक्योरिटी हम पासवर्ड लगाते हैं, वैसे कम उनका कंपनी का पूरा जो डाटा आता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डाटा सिक्योरिटी एनालिटिक्स की पोस्ट होती है। उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी टिप्स और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, डाटाबेस चोरी करने का होता है, उसके रिलेटेड उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो वन कैन बिकम अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस्ट। सेकेंड इज प्रोफेशनल अकाउंटेंट। यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वन कैन सक्सेसफुली हैंडल अकाउंटिंग वर्क ऑफ एनी स्मॉल और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में हम काम कर सकते हैं, सिर्फ हमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। उसकी अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद वन कैन बी प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन कंपनी। बहुत सारी कंपनीज अकाउंटेंट के मतलब दे गेट जॉब्स देयर and many companies hire the persons who want jobs of professional accountant. So we have next a financial advisor. After getting IT knowledge, one can advise and guide others in investing the money in various investment schemes with their calculation and benefits in future. So पता है बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, और कुछ का पर्सनल होता है जो दूसरे लोगों को एडवाइस देते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी टिप्स हुआ, जैसे किसी मतलब कहीं पे मनी इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट का कितना परसेंट करना पे कितना प्रॉफिट होगा, ये सब जो है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र देता है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी एक जॉब है। नेक्स्ट इज साइबर एडवाइज़र दैट वी नो। साइबर टिप्स, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होता है, बहुत कुछ होता है, तो उनसे बचने के लिए जो टिप्स देनी पड़ती है कि क्या करना चाहिए मोबाइल, इफ़ समथिंग हैपन्स रॉन्ग विद एनीवन, सो व्हाट शुड बी डन, उसके लिए प्रिकॉशंस देना, ये साइबर एडवाइज़र का काम होता है। कंपनीज़ में भी बहुत सारे लोग डाटा हैक ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इसलिए साइबर एडवाइज़र रखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ एनिमेटर। जैसे कि एनिमेशन भी एक जॉब है बहुत ये मेनली एडवर्टाइजिंग करना हो, किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट दिखाना है, उनको एनिमेशन देना है, ये भी अच्छी जॉब है। इसके लिए भी हाई इनकम वाली जॉब है ये भी। So this is the most demanding career in today's era. It is possible to become a successful animator using one's own creation and involvement with the help of software like GIMP, Linkspace, etc. So जैसे मैंने बताया एनिमेशन, जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसी टेक्स्ट को या पिक्चर को एनिमेशन दे सकते हैं हम। तो एनिमेशन देने के वक्त वो कैसे अलग अलग शेप्स में दिखता है, मतलब उसको उसकी अलग ही ब्राइटनेस, अलग सबसे अलग दिखेगा वो टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट इज़ गेम डेवलपर। तो जैसे ऐप्स में हम गेम डेवलप करते हैं, बहुत सारी गेम्स आई है, वैसे कोडिंग सीख के उसकी स्किल सीख के गेम डेवलपिंग की वन कैन बिकम अ गेम डेवलपर। Perhaps one of the trendiest and most fun jobs in the sector, a game developer gets to work on titles for the consoles, computers, smartphones, tablets, and online. Creativity and imagination are important, but the ability to work in a highly pressurized environment is also crucial. So, गेम डेवलप करना आना चाहिए, उसके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। और इस सेक्टर में सिर्फ गेम डेवलपिंग नहीं, गेम
चेकर भी होते हैं, जैसे मार्केट्स में नई गेम आती है तो उनको चेक करने के लिए भी अच्छी जॉब्स होती है। तो जो गेम्स मार्केट में आई उसे चेक करने के लिए और उसमें जो कुछ कमी हो तो सुधारने के लिए एडवाइस देने के लिए भी जॉब, उस पोस्ट की भी जॉब्स होती है। सो नेक्स्ट इज़ ऑडियो एंड वीडियो एडिटर। This is most knowingly job as as a career opportunity. To become an audio video editor, one should be good in tools such as Ken Levin, Audacity. With the help of so Audacity, with the help of the tools, one can develop a career as a video journalist. So video or audio. So audio and video editing is also the one of job offered in IT sector, and various various sectors, like in person photography shopee, uh, we can edit audio and video editing we can start. जैसे कि फ़ोटोशॉप्स होते हैं, फ़ोटोशॉप्स में जैसे फ़ोटो एडिटिंग करके मिलती है हमें, और वो वीडियो शूटिंग भी करते हैं। तो हम जैसे चाहते हो उसमें एनिमेशन, वैसा बैकग्राउंड का लुक, वैसा म्यूज़िक हमें पूरी तरह से वो एडिट करके देते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशनल जॉब है। तो हम आगे देखते हैं अभी रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी। रिसेंट ट्रेंड्स मतलब किसकी बढ़ोतरी है, किस पे रिसर्च हो रही है, कौन सी नई ये हो रहा है। तो फर्स्ट इज़ ग्रीन कंप्यूटिंग। It is the study and practice of environmentally sustainable computing, or IT. The goals of green computing are similar to green chemistry: to reduce the use of hazardous materials, to maximize energy efficiency during the product's lifetime, to recycle or biodegradation of non-functional products and factory waste. Green computing is important. So, green computing means जो भी जो जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो, जो भी वेस्ट जो होता है वो जल्दी से रिसाइकलेबल नहीं होता है, तो उसको रिसाइकल करने के लिए एक अलग प्रोसीजर की जाती है। सो दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन कंप्यूटर। ग्रीन कंप्यूटर सेज दैट टू रिड्यूस दी यूज़ ऑफ हजारडियस मटेरियल, जो हजारडियस मटेरियल जो है, नुकसानकारक मटेरियल जो है उनका यूज़ कम करना, और जो हजारडियस मटेरियल यूज़ हुआ है उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन कंप्यूटिंग। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ IoT. The Internet of Things IoT is the network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with the electronic software, sensors, actuators, and connectivity, which enables these things to connect, collect, and exchange data, creating opportunities for more direct integration. So, Internet of Things means the components which are related to internet, like IoT means the interaction between the components, like sensors and other related which are connected to the internet. Internet of Things best examples are equipments in farming and many more. So next trends is cloud computing. It is the delivery of computing services, server, storage, database, network, software, data analytics, and more over the internet. जैसे ये जो सारे अलग अलग सर्वर्स है इनकी डिलीवरी देता है ये। इट इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। कौन से कंप्यूटिंग सर्विसेज है? सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिटिक्स, एंड मोर ओवर द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सभी सर्विसेज। सो नेक्स्ट इज़ डाटा एनालिटिक्स। जो डाटा होता है उसको एनालिसिस करना, दैट इज़ DA।
It is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain, increasingly with the help of specialized systems and software. Data analytics, technological and technique are widely used in commercial industries to enable organizations to make to make more informed business decisions and by scientists and researchers to verify or disprove scientist models theories and hypothesis. मतलब जो भी डाटा होता है उसे एनालिसिस करना, उसका कंक्लूजन निकालना, उसकी डायग्राम्स ड्रॉ करना, ये सब डाटा एनालिटिक्स के अंदर आता है. तो सो नेक्स्ट इज artificial intelligence that everyone knows. It is the intelligence demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence intelligence dispersed by humans and other animals. Computer science defines AI research as the study of intelligent agents as study of intelligent agents, any device that perceives its environment and take actions that maximize its chances to successful achieving its goals. लाइक किसका किसका मोबाइल हैक हो चुका है या कुछ साइबर सिक्योरिटी के टिप्स रिलेटेड ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है. जैसे कि आजकल बहुत सारे AI टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, जैसे कि मोस्टली स्नैपचैट में भी AI का टूल है. नेक्स्ट इज़ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज मशीन की होती है उसके अल्गोरिदम्स जो होते हैं वो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है. It is the scientific study of algorithm and statistical models that computer systems use to effectively perform a specific task without using explicit instructions, relying on patterns and inference instead. It is seen as a subject of artificial intelligence, related to artificial intelligence only. जैसे इसमें कंप्यूटर में जैसे पूरा डाटा ऐसे फीड किया जाता है जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैन परफॉर्म, उससे पता चलनी चाहिए हमें जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा पूरा सिस्टम उसमें सेटअप जो है वो बनाया हुआ होता है. सो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, तभी तो वो जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो देता है. सो नेक्स्ट इज बिग डाटा, जो बड़ा डाटा है. It refers to data sets that are too large or complex for additional data processing application software to adequately deal with. Data with many cases offer greater statistical power, while data with higher complexity may lead to a higher false discovery of rate. मतलब जो बड़े बड़े डाटा है सेव करने में, उसमें रखने में प्रॉब्लम्स आता है, तो ये जो अभी अलग मेमोरीज आई है उनसे वो डाटा जो है वो इजीली स्टोर किया जाता है, रखा जाता है एंड उसे प्रोसेस किया जा सकता है बिग डाटास को भी. अभी ब्लॉकचेन, इट इज़ अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक विच आर लिंक यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर. सो यहाँ पे ब्लॉकचेन मतलब सभी ब्लॉक्स मिलके एक चेन बना रहे हैं ऐसा कुछ, और इनका जो रिकॉर्ड है इनके रिकॉर्ड्स को जो कॉल किया जाता है, इट इज़ अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स. सभी ब्लॉक्स जो है एक से एक कनेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक चेन. सो हमने यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11 पूरा कर लिया है.